نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. اب بھی اذان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء حق اہل سنت, بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. بڑے بھائی برادر کبیر عالی جناب حافظ و قاری عبداللطیف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ان حفاظ کرام کے بازو میں قوت اور طاقت عطا فرمائے. ان سبھی کے علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں رحمتیں وسعتیں عطا فرمائے. محترم ناظرین و سامعین, بس چند منٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. عقل اور عشق کا جھگڑا ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. عقل کچھ اور کہتی ہے, عشق کچھ اور کہتا ہے. کب بولیں گے آپ لوگ؟ عقل کچھ اور کہتی ہے, عشق کچھ اور کہتا ہے. عقل کے دروازے الگ ہیں, عشق کی دہلیز الگ ہے. عقل کے کارخانے الگ ہیں, عشق کا صحرا الگ ہے. ذرا مسکرا کے. عقل کچھ اور کہتی ہے, عقل کہیں اور لے کے جاتی. یہ عقل ہی تو ہے جو یہ کہہ رہی تھی رات اچھی ہے, بستر نرم ہے, سو جانا چاہیے. یہ عشق کہہ رہا تھا نبی کی محبت میں جاگ جانا چاہیے. عقل کا اور عشق کا جھگڑا ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. عقل کہتی ہے مت بول, عقل کہتی ہے مت بول, بولنے سے تیری زبان ہلکی ہوگی. عشق کہتا ہے بول لے, مصطفیٰ کے نام سے زیزان ہلکی ہو جائے گی. عقل کچھ اور کہتی ہے, عشق کچھ اور کہتا ہے. عقل کے دروازے الگ ہیں, عشق کی دہلیز الگ ہے. عقل کے راستے الگ ہیں, عشق کے دروازے الگ ہیں. ہر ایک الگ الگ پتہ دے رہا ہے. عقل کہتی ہے مت کر پچھتائے گا, عقل کہتی ہے مت کر پچھتائے گا. عشق کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. آپ آئیے سوار ہو کے دیکھیے, اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. عقل کی سواری پر بیٹھ کر گزرنا ہے یا عشق کی سواری میں بیٹھ کر چلنا ہے. اب فیصلہ عقل والوں کا عقل والوں کے حوالے اور عشق والوں کا عشق والوں کے حوالے ہے. اب دیکھنا یہ ہے, ایک دریا ہے اسے پار کرنا ہے. عقل والے اپنی عقل سے پار کرتے ہیں, عشق والے اپنے عشق سے پار کرتے ہیں. عقل والوں کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا سہارا ہونا ضروری ہے. عقل والوں کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے. عشق والے کشتی کا سہارا نہیں لیتے. اگر 313 اپنے عشق کی سواری پر سوار ہو جائیں تو دریائے دجلہ ہو یا کوئی بھی دریا ہو, وہ دریا یہی کہتی ہے اے گھوڑوں پہ سوار ہونے والوں آ رہے ہو. مگر عقل کہہ رہی تھی گھوڑے دریا میں نہیں دوڑا کرتے, گھوڑے دریا میں سفر نہیں کرتے. مگر عشق کی سواری پر بیٹھنے والے ان 313 صحابہ کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ایسا معجزن تھا, عشق رسول ایسا سمایا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ عقل والے ہوں گے جو دریا میں کشتی کا سہارا لیتے ہیں. ہم عشق والے ہیں دریا میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. ہم عشق والے ہیں دریا میں گھوڑے دوڑاتے ہیں. تاریخ کا پتہ لگائیے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے, تاریخ کا ایک ایک لفظ تمہیں بتا دے گا. عقل والوں نے دیکھا تھا یہ گھوڑوں پہ سوار 313 ہے, یہ دریا پار کیسے کریں گے. مگر دریا نے جب دیکھا تھا عشق والے آ رہے ہیں تو دریا نے اپنا سینہ اتنا کشادہ کیا, اتنا مضبوط کیا کہ تاریخ میں آتا ہے جہاں کشتیاں فیل ہو جاتی ہیں وہاں صحابیوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں, وہاں صحابیوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا تھا عقل کچھ اور کہتی ہے, عشق کچھ اور کہتا ہے. عقل والے کشتی سے جاتے ہیں, عشق والے محبت سے تیرا کرتے ہیں. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہم عشق کی کشتی میں بیٹھے یا عقل کی. ذرا زور سے. اگر عقل والے ہو گئے تو
दुनिया में गुम हो गए। जो इश्क की सवारी पे सवार हुआ, इतना इनाम मिला है कि अगर मैं तारीख का हवाला देना शुरू करूं, आप अगर वाकई इश्क में बैठे, देखो जब मामला खडर फडर हो तो फुटका होता है, वो जो सुभान अल्लाह ना बोले समझ जाइए मुंह में गुटका होता है। अब अल्लाह के घर में बैठे फिर भी चुप चुप बैठे हैं, है ना, चुप चुप से काम नहीं चलेगा, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो, मैं इश्क की बुनियाद दिला रहा हूँ। इश्क की तारीख का मुताला करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो इश्क की सवारी पे सवार हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे नवाज दिया है, उसे इनाम व इकराम अता किया है। आप कहेंगे हजरत हमें नाम बताइए। मैंने कहा पहला नाम उठा, जैसे दुनिया अबू बकर कहती है इश्क की सवारी पे सवार हुआ तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया है। आज जरा मैं आपको और बताऊं, अगर आपकी तारीख का मुताला मजबूत है, यही इश्क ही तो था जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया है। ये वही इश्क ही है जिसने जनाब उमर को फारूक आदम बनाया है। ये इश्क ही तो है जिसने फकत उस्मान को उस्मान ज़ुन्नूरैन बनाया है। ये इश्क ही है जिसने खाली अली को शेर खुदा बना दिया है। ये इश्क ही तो है अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाए, ये इश्क की सवारी है। उमर को फारूक आदम बनाए, ये इश्क की सवारी है। उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाए, ये इश्क की सवारी है। अली को शेर खुदा बनाए, ये इश्क की सवारी है। और सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा को कनाअत की मलका बनाया, ये इश्क की सवारी है। आगे और आ जाइए, काले बिलाल है, काले बिलाल को गोरों के लिए रश्क तमन्ना बनाया, ये इश्क ही की सवारी है। और आगे बढ़िए, इमाम हसन है, हसन को मुश्तबा बनाया, ये इश्क की सवारी है। हुसैन को शहीद करबो बला बनाया, ये इश्क की सवारी है। और आगे बढ़िए, इमाम बाकर चमक गए हैं, इश्क की सवारी है। इमाम जाफर चमक गए हैं, इश्क की सवारी है। इमाम आजम चमक गए हैं, इश्क की सवारी है। इमाम मालिक चमक गए हैं, इश्क की सवारी है। इमाम शाफई चमक गए हैं, इश्क की सवारी है। और अगर तारीख का मुताला करना है तो और अपनी अपनी बीनाई को तेज कीजिए। गौसे आदम को अगर बड़े पीर बनाया है तो इश्क की सवारी ने बनाया है। गौसे आदम बड़े पीर बने, इश्क की सवारी पे सवार है। और आगे आइए, हिंद का ताजदार, हिंदुस्तान का शहंशाह, हिंदुस्तान का बादशाह, अताए रसूल, नायब रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अगर सुल्तानुल हिंद बन गए हैं तो इश्क की सवारी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चमके हैं, इश्क की सवारी है। बाबा कुतुबुद्दीन चमके हैं, इश्क की सवारी है। बाबा फरीदुद्दीन चमके हैं, इश्क की सवारी है। अगर निजामुद्दीन चमके हैं, इश्क की सवारी है। साबिर पाक चमके हैं, इश्क की सवारी है। फारिस पाक चमके हैं, इश्क की सवारी है। और आगे देखो, कलियर का दूल्हा चमका है, इश्क की सवारी है। मारेरा का दूल्हा चमका है, इश्क की सवारी है। कि चाचा का दूल्हा चमका है, इश्क की सवारी है। पपून का दूल्हा चमका है, इश्क की सवारी है। ख्वाजा अब्दुल समद चमके हैं, इश्क की सवारी है। मिसबाहुल हसन चमके हैं, इश्क की सवारी है। अकबरुल मशाइख चमके हैं, इश्क की सवारी है। रफीकुल हक नदर चमके हैं, इश्क की सवारी है। मुफ्ती अनफासुल हसन अगर चमक रहे हैं, इश्क की सवारी में चमक रहे हैं। अगर अकबरुल मशाइख चमके हैं, इश्क की सवारी है। रफीकुल हसन चमके हैं, इश्क की सवारी है। मुफ्ती अनफासुल हसन अगर चमक रहे हैं तो इश्क की सवारी पे सवार होकर चमक रहे हैं। अगर बरेली की टूटी चटाई पर इमाम अहमद रजा चमका है, इश्क की सवारी में बैठ के चमका है, तभी तो आला हज़रत पुकार उठते हैं। चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फैसला हमको करना है, इश्क पे बैठना है या अक्ल पे बैठना है। अक्ल पे बैठने वाले रात नहीं जागा करते, इश्क पे बैठने वाले रात देखा ही नहीं करते। जरा मुस्कुरा के, ये इश्क की सवारी वाले तो बैठे हैं ना। आओ सुनो, मेरे पास मौका और वक्त नहीं, आप भी मसरूफ आदमी। इश्क कहां कहां कामयाब करता है, कभी आपने गौर किया है?
हिरकल आदम बादशाह की गिरफ्त में जनाब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा हुए। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को हिरकल आदम ने गिरफ्तार कर लिया। आज हम चंद चंद सिक्कों में ईमान बेच रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है। दुनिया ये समझती है कि सियासत और राजनीति की मार्केट में खड़े होकर लोग मेरा बोलबाला कर रहे हैं, मगर जो इश्क की बस्ती में खड़ा हो जाता है वो लोगों की तारीफ नहीं देखता, मुस्तफा की रज़ा देखा करता है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा हिरकल आदम की गिरफ्त में है। हिरकल आदम ने गिरफ्तार करके रखा है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं। जनाब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को चारों तरफ नजर दौड़ा के दिखाया गया। इधर नजर डाले अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा तो मुनाफिकों का मेला है, उधर नजर डाले तो मुनाफिकों का मेला है, उधर नजर डाले तो मुशरिकों का मेला है। चारों तरफ काफिर और मुशरिक हैं, मगर बीच में जो खड़ा है आशिक़े रसूल खड़ा है। जरा मुस्कुरा के बोले, बीच में खड़ा होने वाला आशिक़े रसूल है। आशिक़े रसूल की तरफ लोगों ने तखातुब किया। लोग ये समझ रहे थे आज एक मुसलमान बीच में, चारों तरफ कुफ्र का मेला है, हार जाएगा। मगर इश्क कह रहा था मैं कल भी जीता था, आज भी जीता हूं और कयामत तक जीतता रहूंगा। जनाब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को गिरफ्तार किया। हिरकल आदम बादशाह ने कहा सामने लाओ। सामने लाया गया। कहा अब्दुल्ला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथों की हथकड़ी छूट जाए, पैरों की बेड़ियां छूट जाए, तो कुछ ना करो, सिर्फ अपने नबी का कलमा छोड़ दो, नबी का इश्क छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तुम ये मत समझो, अब्दुल्ला फरमाते हैं मेला तेरा है, मौत का बाजार तेरा है, लोग तेरे हैं, मजमा तेरा है, मगर याद रखना इस जमीन पर भी खुदा मेरा है। जरा मुस्कुरा, इस जमीन पर भी खुदा मेरा, इस जमीन का खुदा एक, इस जमीन का सबसे नबियों का सरदार नबी मेरा एक। अगर मैं नबी का सच्चा आशिक हूं तो याद रखना ये जबान कट सकती है मगर कलमा निकलना नहीं छोड़ सकता, ये गर्दन कट सकती है मगर कलमा नहीं छोड़ सकता। दिल की एक एक धड़कनों पर मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत की बुनियाद है। अगर तुम मेरे जिस्म के खून के कतरे निकालोगे, हर कतरा आवाज देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिरकल आदम बादशाह ने कहा जबान बहुत चलाता है और जबान से बोलने वाला आदमी दिल से बहुत कमजोर होता है। कहा अब्दुल्ला ये बोलना बहुत आसान है मगर जब मौत का बाजार देखोगे तो हेकड़ी दूर हो जाएगी। अभी तुमने हमारे मौत का बाजार देखा ही नहीं है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा फरमाते हैं हमने ओहद में भी मौत का बाजार देखा है, हमने बद्र में भी मौत का बाजार देखा है, हमने खैबर में भी मौत का बाजार देखा है। और मौत का डरों से डराइए, जो मौत के लिए डरता हो अल्लाह का शुक्र है जब तक जिंदा है इसके नबी में है, और मौत आएगी तो भी इसके रसूल में मौत आएगी। अगर बात मौत की आ गई है तो आज मुझे आजमा के देख ले, मेरा भी नाम अब्दुल्ला है, मैं भी तो देखूं जरा तेरे मौत के बाजार में कितनी ताकत है। लोगों ने कहा जरा मौत का बाजार इसे दिखाया जाए। हिरकल आदम बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा इसकी बेड़ियां खोल दी जाएं। पैरों की बेड़ियां खोली, हाथों की हथकड़ी खोली। एक सिपाही ने हाथ दायां पकड़ा, एक सिपाही ने हाथ बायां पकड़ा, दोनों लेके चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर अपने सीनों पे थपकियां मारो मुसलमानों, अपने ईमान पर जायजा लो मुसलमानों। क्या वाकई इश्क रसूल हमारा ऐसा इश्क रसूल है? ये कौन सा इश्क रसूल है? मस्जिद इमाम आदम में जिक्र मुस्तफा की महफिल है और मैं सीना तान के बोलता हूँ मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। यहाँ जिक्र रसूल हो रहा है, मैं अपने बिस्तर पे सो रहा हूँ, जरा मुझसे बताइए फिर ये कैसा ईमान है? यहाँ मुस्तफा का जिक्र हुए और एक मुसलमान अपने बिस्तर पे सो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर दुनिया के सामने तुम भीख मांगने के लिए तैयार खड़े रहते हो, दुनिया तुम्हें ठोकरों पे मारती है, तो मुझे कहने दिया जाए जो इश्क की बस्ती में आ जाता है, जो इश्क की सवारी में सवार हो जाता है, वो दुनिया का मोहताज नहीं रहता, दुनिया उसकी मोहताज हो जाया करती
नहीं है। आप कहते हैं आज हमने शोर मचा के रखा है, हमसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं, जिसे देखो वही बोलता मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मैं सवाल किया मेरे भाई जान जरा बता, इन होठों पे अपनी तूने मुस्तफा का नाम लिया और बोलता है मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं, मगर फजर की नमाज तुझसे दूर है, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मैं जोहर को पहचानता तक नहीं, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मैं असर को पहचानता तक नहीं, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। ना मैं मगरिब को जान रहा हूँ, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। ना मैं इशा को पहचान रहा हूँ, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। आज मेरी माँ दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए तैयार खड़ी है, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरा बाप दूसरे के कांधे पर सर रखकर रोने के लिए मजबूर खड़ा है, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरे आंगन की बेटी मार्केट में बेपर्दा चल रही है, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरे आंगन की बेटी आज डीजे में डांस कर रही है, मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। अरे मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, फिर क्यों शोर मचा रहे हो? कोई कहता हमें अमेरिका लूट रहा है, कोई कहता है इजराइल लूट रहा है, कोई कहता है इजराइली प्रोडक्ट्स लूट रहे हैं, मगर सच्चाई सुननी है तो फिर कड़ुआ सच सुनो मुसलमानों, तुम्हें ना अमेरिका लूट रहा है ना इजराइल लूट रहा है। अगर कुछ लूट रहा है हमारी बदकिरदारी हमें लूट रही है, हमारी बदअमाली हमें लूट रही है। अगर हमारा किरदार उसी अब्दुल्ला की तरह हो जाए तो हिंद वालों को कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।